Hello everyone. Hello students. I'm on time. Good afternoon. I think my voice is clear. ओके आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया क्या बच्चा? एग्जाम्स डेट आ गई क्या आप लोगों की? ऑडिबल? एग्जाम्स डेट आ गई है क्या? Why you guys are not answering? Okay. Otherwise all good? Okay students, your test of Indian Contract Act 1872 will be held on next week. So please prepare yourself. यस स्टूडेंट्स, कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कंडीशंस. कंडीशंस हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड की थी, इम्प्लाइड कंडीशन एंड executed condition, express condition. What is the meaning of express condition? Anyone? What is the meaning of express condition? Perfectly. At the time of making the contract, when all terms and conditions has been specified, has been expressed by the oral or by in written activity, that is called express condition. Understood? Okay. But some conditions are implied. What is the meaning of implied condition? Sorry, please repeat. Yes, by code, by conduct, or by the behavior, when any person can assume that that's a part of the contract, which is a part of the law, unless the parties make that contrary. जब तक parties कुछ और ना कहते, generally हमेशा ऐसा ही होता है. That is the part of implied condition or the warranty. There is no need to express that implied condition or the warranty. हम लोगों ने स्टूडेंट्स कंडीशन एज टू टाइटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल? Condition as to title, it means a person who wants to sell the goods has right to sell the goods, or in case of sale of agreement, he will have a right to sell that goods at the time when the property is to pass. मतलब जिस टाइम पर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होगा, उस टाइम पर उसको वो राइट अवेलेबल हो जाएगा.
That is the part of the condition as to title. Students, मैंने अभी आपको कहा कि कंडीशन एज टू टाइटल दो तरीके से हो सकता है. First, at the time of making the contract sale or at the time of say agreement to sale. At the time of making the contract, so in the case of the sale, he has right to sell the goods at the time of making the contract. मतलब यहाँ पर उसके पास right है, हमें एक्स्ट्रा पूछने की जरूरत नहीं है, उसके पास right है तभी वो गुड सेल कर रहा है. और इन केस ऑफ द अग्रीमेंट टू सेल क्या होना चाहिए? He will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. Property is to pass का मतलब जिस दिन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होगा, जिस दिन उसे ऑनरशिप ट्रांसफर करनी होगी, उससे पहले किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी उसके पास होगी, ऑनरशिप उसके पास होगी, राइट टू सेल उसके पास होगा. This condition, students, however, applies to every contract of sale unless a different intention appear from the circumstances to the contract. ठीक है, सेक्शन 14 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है बच्चा. तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, दैट इज condition as to title. Section 14 subsection A. What is the section of the condition as to title? Section 14 subsection A. Understood? Yes. Condition as to description. What is the meaning of condition as to description? जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने गुड्स से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों को दिया था, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन. इट मींस डिस्क्रिप्शन मींस कि उन्होंने हम लोगों को बताया था सर आपका गुड्स ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारे फीचर्स उन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन किए थे. और उन फीचर्स पर बिलीव करके अगर हम लोगों ने गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ऐसी कंडीशन में गुड्स वही डिलीवर होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है. ठीक है ना? अगर उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं है तो वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. वी हैव पावर टू कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स टेंडर्ड मस्ट correspond with the description. Not, it would amount to breach of condition of the contract. Consequently, the buyer may reject the goods tendered. Understood? Yes, sir. Yes, स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग मुझे एग्जांपल दे दो कंडीशन एस टू सैंपल का. कंडीशन एस टू सैंपल का कोई भी एग्जांपल बता दे बच्चा. Yes, when we want to purchase a bulk amount of goods, it is not possible to check each and every unit of that bulk. So we always see the sample and can assume कि जो भी बल्क में जितने भी यूनिट्स हैं वो सैंपल के इक्वल ही होगी. ठीक है, लेकिन अगर उस सैंपल के इक्वल ना हो, उस सैंपल के इक्वल ना हो, तो बायर के पास राइट होता है कि वो गुड्स रिटर्न कर सकता है, पेमेंट वापस ले सकता है. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहां पर सैंपलिंग तभी पॉसिबल होगी जब गुड्स आप बल्क में परचेस कर रहे हैं, that the buyer shall have a reasonable opportunity to comparing the bulk with the sample. हो सकता है इसमें टेस्टिंग सैम्पलिंग सिस्टम भी हो जाए. आपके पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से आपने कोई से भी 5 यूनिट ले लिया और उस 5 यूनिट को आपने एज ए सैंपल चेक किया है कि जो मैंने सैंपल देखा था वो उसके इक्वल है या नहीं है. That the goods shall be free from the latent defects which are not discoverable on reasonable examination.
वो कोई भी डिफेक्ट उन गुड्स के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट एक पर्सन है जिसको 100 साड़ीज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, उसने एक पर्टिकुलर सैंपल देखा, उस सैंपल के बेसिस पर उसने कहा ठीक है, इस कलर की इस सैंपल के अकॉर्डिंग आप 100 साड़ीज भेज देना। जब वो साड़ीज आई तो साड़ीज की क्वालिटी भी खराब थी और कहीं कहीं पर उस साड़ी के अंदर छेद भी हो रखे थे। मुझे एक बात बताएं, क्या गुड्स रिटर्न करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? है। इट मीन्स दैट इज कंडीशन एज टू सैंपल। क्लियर? Condition as to sample as well as description. Where the goods are sold by the sample as well as by description, it is implied condition is that the goods must be correspond with both. With both का मतलब जो सैंपल दिखाया है और जो डिस्क्रिप्शन है उन दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है। अ सेलर अंडरटेक्स टू सप्लाई 100 tons of java sugar wanted to be equal to the sample. The sugar when supplied corresponds to the sample but is not Java sugar. The buyer can repudiate the contract. Buyer can cancel the contract. Sometimes there may be difference between sample and description of the goods. In such a case, students, the buyer can reject the goods if the goods tendered does not answer the description. मतलब goods description के according ना हो तो बायर रिजेक्ट कर सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल कंडीशन है बच्चा। फंडामेंटल कंडीशन का मतलब इट इज अ बेसिक कंडीशन। एवरी कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन और सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, कंडीशन अपन ने कंडीशंस पढ़ ली थी क्या? The last. अच्छा, बाकी कंप्लीट थी। चलिए वापस पढ़ लेते हैं। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। स्टूडेंट्स, जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि जो भी गुड्स हम परचेज करें वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, और दूसरा पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर हमने परचेज किया है तो वो उस पर्टिकुलर पर्पस में यूजेबल होना चाहिए। मैंने शायद आपको यहाँ पर मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, राइट? Yes. इट इज अ बायर्स ड्यूटी टू सेलेक्ट द गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बायर को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता कि किस कंडीशन में कौन सी गुड्स को यूज किया जाता है नहीं किया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, बायर सेलर पर बिलीव करता है कि हाँ, सेलर अपनी जजमेंट अपने स्किल्स के बेसिस पर गुड्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। और बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी कंडीशन पहले ही बता दी थी कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर रीजन से चाहिए, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चाहिए। अगर सब कुछ बायर ने अपने सेलर को बता दिया फिर भी सेलर अगर गलत गुड्स दे रहा है जो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट नहीं है या क्वालिटेटिव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बायर के पास राइट होता है कि वो गुड्स को रिटर्न कर दे और अपना पेमेंट वापस ले। इट मींस बायर हैज राइट टू ब्रिच द कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। Merchantability means acceptability in the market. In the contract of sale, there is an implied condition that the goods purchased are of merchantable quality. Students, आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो एक्सपायरी डेट चेक करते हो? Why you check expiry date of that goods? Why you guys check expiry date of that goods? The label.
सर सूटेबिलिटी के लिए, यूजेबिलिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए. इट मीन्स इफ the merchantability of that good is not proper, if we can't use that product after the buying of that, it is not acceptable in the market, then such condition should be merchantability. So what is the meaning of merchantability? Merchantability means acceptability in the market. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो मार्केट में यूज नहीं किया जा सकता, कोई पर्सन उसको परचेज करके उसको रीजनेबल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर सकता, तो इट मीन्स वो गुड्स सही नहीं है, इट इज नॉट मर्चेंटेबल. सो अ वॉच दैट विल कीप ऑन टाइम एंड पेन दैट विल नॉट राइट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मर्केंटेबल. अगर आपने एक बॉटल परचेज की है, वाटर बॉटल, और वो वाटर बॉटल लीक्ड है, उसमें से पानी टप 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 गिरता है, तो क्या वो बॉटल यूजेबल है, मर्केंटेबल है? That is called condition as to merchantability. Condition as to wholesomeness. This condition is implied only in a contract of sale of edible or provisional products. In such case, the goods supplied must not only answer to description or be mercantile, but also be wholesome. In other words, the goods must be free from any defect which makes them unfit for human consumption. सपोज दैट आप कॉफी कैफे डे में कॉफी पीने के लिए गए, और जब कॉफी आपके सामने आई तो उस कॉफी के अंदर छोटी सी मक्खी गिर गई. इज इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन? नो. इट मीन्स दैट इज द कंडीशन ऑफ होलसमनेस कि वो पर्सन या तो कॉफी चेंज कर दे, या फिर आपने अगर कोई अमाउंट पे किया है तो वो अमाउंट वापस रिटर्न कर दे. That is called condition as to wholesomeness. Understood? Yes, students. Implied warranty. अब आप लोग मुझे बताएं what is the meaning of warranty? Students, am I audible? Uh, what is the meaning of warranty? ओके, डैमेजेस क्लेम करने का राइट होता है, लेकिन क्या वारंटी के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या?
No, we cannot cancel that contract. It means a warranty is the stipulation collateral. Collateral matlab it is the not a part of the basic contract, basic object, but it is a collateral to the main purpose of the contract. The breach of which gives raise to be claimed for the damages. You can raise the claim of that damage, but no right to reject that goods or no right to uh, cancel that contract. It means in the warranty we can get the right to make damages, right to claim that damages, but a person cannot कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. रिपेयर करवाया जा सकता है, रिप्लेसमेंट करवाया जा सकता है. कोई डैमेज बाहर से अगर आपने रिपेयर करवाया तो उसका डैमेज का अमाउंट आप ले सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. कुछ इम्प्लाइड वारंटीज होती है. वारंटी इट मींस टू वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. क्वाइट पोजीशन का मतलब समझे कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई गुड्स परचेज किया है तो उस गुड्स का कंप्लीट राइट बायर को मिलना चाहिए. सपोज दैट मिस्टर एक्स ने वाई को कोई गुड्स सेल किया, बाइक सेल किया, सपोज दैट बाइक सेल किया, ठीक है. बाइक सेल करने के बाद एक दिन वाई एक जा रहा था कहीं पे, तो जेड बीच में मिल गया. जेड ने वाई को रास्ते में रोक लिया, बोले ये बाइक तो मेरी है. बोले कैसे? बोले एक्स ने मुझसे लोन लिया था और उस लोन के अगेंस्ट में उसने बाइक मेरे पास मोर्टगेज पे रखी थी, मतलब बाइक के जो पेपर्स है उसने मेरे नाम पे कर रखे थे. मुझे एक बात बताएं, यहां पर एक्चुअल ओनर कौन है? एक्चुअल ओनर अभी है वाई, क्योंकि वाई ने तो एक्स से गुड्स परचेज कर लिया, लेकिन वाई उस बाइक पर कंप्लीट पोजीशन नहीं रख पा रहा है. क्यों? क्योंकि एक्स की वजह से जेड को वो बाइक चाहिए कि जेड ने एक्स ने मेरा लोन का पेमेंट नहीं किया, उसने कोलेटरल रखा था बाइक को, तो अब ये बाइक मैं सेल करूंगा. वाई ने क्या किया? वाई ने जेड को बोला कि भैया कितना पेमेंट बाकी है? बोले कि 3,000 रुपए. वाई ने वो 3,000 रुपए जेड को दिए और जेड को फ्री कर दिया. अब बाइक का पूरी तरीके से पोजीशन, पूरी तरीके से लोन जो है वो फ्री हो गया, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी. मुझे एक बात बताएं, क्या ये 3,000 रुपए वाई एक्स से लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा. दैट इज नोन एज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एंक्यूबर्सिस. एंक्यूबर्सिस का मतलब क्या हो गया कि सेलर के पास राइट है, सेलर की ड्यूटी है कि जब भी वो गुड्स को कहीं सेल करे तो वो गुड्स सारे चार्जेस, सारे एंक्यूबेंस से फ्री होना चाहिए. मतलब कोई पर्सन, थर्ड पर्सन ये नहीं कह दे फ्यूचर में कि यार ये तो गुड्स मेरा है, ये गुड्स मुझे चाहिए. अगर बायर ने सेलर के बिहाफ पर अपने गुड्स को बचाने के लिए कोई भी खर्चा किया है तो वो सेलर से रिसीव करने का राइट वो रखेगा. अंडरस्टूड? कोई डाउट? नो? वाई नहीं देता पेमेंट तो फिर जेड उस बाइक को अपने साथ ले जा सकता था, क्योंकि प्राइमरी राइट जो है वो बाइक के ऊपर जेड का है कि अगर एक्स ने पेमेंट नहीं किया है तो अब जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी तो वो लेकर के जाएगा. वाई को पूरी नॉलेज लेनी चाहिए थी ऐसी कंडीशन में. that is warranty of quiet possession. What is the meaning of quiet possession? क्वाइट पोजीशन का मतलब होता है कि बायर को पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए कि जो भी चीज वो परचेज कर रहे हैं
उस परचेज गुड्स के कंप्लीट राइट बायर के पास में है। फॉर द एग्जाम्पल बच्चा, मिस्टर एक्स के पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल के अगेंस्ट, चलो मोबाइल गोल्ड था, उस गोल्ड के अगेंस्ट में उन्होंने जेड से 5 लाख रुपीज लोन लिया, पर गोल्ड एक्स के पास ही रखा हुआ था। वो गोल्ड फ्यूचर में उसने सेल कर दिया मिस्टर वाई। वाई को पूरा राइट है कि वो गोल्ड गोल्ड जो उन्होंने परचेज किया है उसका क्वाइट पोजीशन वो अपने पास में रखे, मतलब पूरी तरीके से वो अपने पास में करे। एक्स ने जब वाई को गुड सेल किया था तो एक्स ने वाई पर कंडीशन डाली थी कि ये गोल्ड आप 2 साल तक नहीं बेचोगे। कब तक नहीं बेचोगे? 2 साल तक नहीं बेचोगे। क्या एक्स ऐसी कंडीशन लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। इट मींस अगर वाई कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो उस गुड्स को परचेज करते टाइम गुड्स के सारे राइट्स 100% राइट एक्स के पास होने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज वारंटी एज क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स, कि शांति से वो गुड्स मेरे पास रहे, कोई दिक्कत ना हो। जेड आया वाई के पास, भैया आपके पास जो गोल्ड है वो तो मेरा है, आपने खरीद कैसे लिया? बोले कि मेरे को तो एक्स ने बेचा, आप एक्स से जाके बात करो। बोले नहीं वो गुड्स मेरा है, ये देखो ये अग्रीमेंट मेरे और एक्स के बीच में हो रखा है, ये एक्स के सिग्नेचर है, ये डेट है, और आपका ने जो सेल अग्रीमेंट बनाया है उसकी डेट बाद वाली है, तो ये गुड्स तो मेरा है। उसने कहा सर कितना लोन पेंडिंग है? बोले 50,000 रुपए का लोन पेंडिंग है। वाई ने जेड को अगर वो क्लेम नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में जेड कोर्ट में स्यू फाइल करेगा एक्स के अगेंस्ट में, और वाई से वो प्रॉपर्टी छीन कर जेड को दे दी जाएगी। लेकिन जेड ने क्या, वाई ने क्या किया, वाई ने वो 50,000 रुपए जेड को दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जेड तो हो गया फ्री, जेड की पिक्चर हो गई खत्म। नाउ क्या वाई के पास राइट है कि वो एक्स के ऊपर स्यू फाइल करे? बिल्कुल राइट, होना भी चाहिए। दैट इज वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ चार्जेस। जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हो वो सेल पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। इफ द बायर्स पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अनडिस्क्लोज चार्ज, अगर बायर का पोजीशन किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है ड्यू टू अनडिस्क्लोज चार्ज in favor of any third party, he shall be entitled to claim compensation for damage from the seller. Buyer can file sue on the seller for any type of damage. अगर सेलर नहीं माना, सॉरी जेड नहीं माना यहाँ पर, और जेड ने कहा नहीं मैं तो गुड्स ही लेके जाऊंगा, गुड्स लेकर के चला गया, तो ऐसी कंडीशन में वाई के पास राइट है कि वो एक्स से अपना पूरा पूरा पैसा वापस ले ले। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन? हाँ जी बच्चा बोलो। हम्म। हम्म। ज्यादा पार्ट तो वाई का है बच्चा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि जब तक आप लोन का पूरा पेमेंट नहीं दे देते तब तक गुड्स का कोलेट्रल जेड के पास रहेगा। मुझे एक बात बताएं, सपोज दैट अगर मैं किसी भी बैंक से होम लोन लेता हूँ तो मुझे घर के कागज तो तभी मिलेंगे जब मेरे पूरा लोन पेमेंट हो जाएगा। अगर एक इंस्टॉलमेंट भी पेंडिंग है तो घर के कागज कहाँ रहेंगे? बैंक के पास रहेंगे। यस और नो? अंडरस्टूड? वारंटी एज टू फिटनेस, an implied warranty or condition as to quality or fitness for the particular purpose may be annexed to use of the trade. इट मीन्स जिस पर्पज से आपने गुड्स परचेज किया है, अगर उस पर्पज
में थोड़ी बहुत इश्यूज हैं कि हाँ, आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स मंगाया था, उस पर्पस में वो गुड्स कैपेबल तो है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा। सपोज दैट आपने एयर कंडीशनर मंगाया था और सेलर ने कहा था कि हाँ, ये जो गुड्स है वो आपके हॉल को पूरी तरीके से ठंडा कर देगा। वो ठंडा नहीं कर पा रहा, तो क्या आप उसको रिपेयर या रिप्लेस करने की डिमांड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो क्या कि नहीं, मेरे को तो अब तुमसे एसी नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा पैसा वापस दे दो? नो, यू कैन नॉट। इन एवरी contract of sale, an implied warranty is to quality and fitness of goods for a particular purpose may be annexed by users of trade. Students, suppose that क्या कहूँ, आप लोगों को एक पार्टी करनी थी, ठीक है ना? उस पार्टी में आप लोगों को आपने एक डीजे बुलवाया आपने एक डीजे बुलवाया, ठीक है ना? उस डीजे के पास में सॉन्ग्स का कलेक्शन सही नहीं था, तो क्या आप उस डीजे वाले को कैंसिल करके उसको वहां से भगा सकते हो क्या, बिना पेमेंट किए? अरे वाह, खूब चलती है। उसको भगा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उससे डैमेज रिसीव कर सकते हैं, उसका पेमेंट हम काट सकते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाग जाए यहाँ से। हाँ, आप उसका पेमेंट अगर 5000 रुपीज है तो आप 4000 रुपीज दे सकते हो, अपना डैमेज जो है वो आप कैंसिल करा सकते हो। सपोज कोई ढोल आपने मंगाया, ढोल फूट गया बजाते बजाते, तो ढोल फूट गया तो वो नया ढोल लेकर के बजा सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, पर आप ये नहीं आता ढोल फूट गया आप तो पैसे नहीं दे, आप तो पैसे नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, कभी सिगरेट वगैरह देखी हो आपने, परचेज तो नहीं की होगी, अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो उस पे नीचे कुछ वार्निंग लिखी हुई आती है। क्या लिखी हुई आती है? हाँ, दिस प्रोडक्ट इज इंजूरियस टू द हेल्थ, और ऐसा कुछ कैंसर वैंसर भी लिखा हुआ आता है। ऐसा क्यों जरूरी है? बिल्कुल, एक तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, राइट टू नो में, राइट टू बी न्यू अबाउट द प्रोडक्ट। दूसरा, लेबलिंग में ये कंपलसरी है। तीसरा, अगर किसी बायर को ये नहीं पता हो कि इस गुड्स को कैसे प्रिजर्व करना है, इस गुड्स का यूज कैसे करना है, और अगर उस गुड्स से कोई बंदा चोटिल हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस गुड बायर के साथ गलत हो गया। तो इट इज वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। अगर आपने किसी बच्चे के सामने पास में अगर कोई बॉटल रखी है दवाई की, तो उस पर लिखा हुआ होता है क्लियरली, यूज दिस आफ्टर डिस्कशन और सजेशन ऑफ द डॉक्टर। अगर आपने उस डॉक्टर से सजेस्ट नहीं किया तो गलती आपकी है, लेकिन उस पर लिखा हुआ ही नहीं था, और ना उसने आपको कहा था एट द टाइम ऑफ सेल, और आपने बच्चे को पिला दी, तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी कंडीशन में डैमेज जो आपको अमाउंट का हुआ है, वो डैमेज आपको मैन्युफैक्चरर से लेने का राइट होगा। दैट इज कॉल्ड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। अंडरस्टूड? Yes. यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। सॉरी, वारंटी एज टू फिटनेस वापस देख लेते चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट आपने कहीं से कोयला परचेज किया, यू नो अबाउट द कॉल, Yes, sir. ओके,
आपने कहीं से कॉल परचेज किया और आपने कॉल परचेज करने से पहले ही सामने वाले को बता दिया था कि कॉल उनको एक पर्टिकुलर स्टीमर के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? पर्टिकुलर स्टीमर के लिए चाहिए। आप लोगों ने कभी बंकरिंग स्टीमर देखा है? बंकरिंग स्टीमर को, अच्छा, कोयले वाला चूल्हा देखा है जिसपे भुट्टे सेके जाते हैं? अभी बहुत सेके होंगे। हाँ जी। अब ये इम्प्लाइड वारंटी हो गई कि भाई बायर को जो आपने कहा है कि मुझे सिगड़ी के लिए सिगड़ी के लिए मुझे कोयले चाहिए, और उसने गलती से आपको पत्थर वाले कोयले दे दिए। कोयले दो तरीके के होते हैं, लकड़ी वाले कोयले और पत्थर वाले कोयले। पत्थर वाले कोयले जब जलते ना तो वो फूटते हैं, मतलब थोड़े से फट फट की आवाज उसके अंदर आती है, डर लगता है पत्थर वाले कोयले जब जलते हैं तब। लकड़ी वाले कोयले आराम से जलते हैं, लंबे टाइम तक जलते हैं। उसने पत्थर वाले कोयले दे दिया आपको। मुझे एक बात बताएं, क्या वो यूजेबल है, फिट फॉर द यूज है? नो। इट मीन्स अगर उससे कोई भी डैमेज होता है तो ऐसी कंडीशन में सेलर विल रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल दैट डैमेज। ओके, यस। और कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।